Hey students, today we will discuss about our new chapter communication, e-commerce and outsourcing in this video. We will discuss about communication in detail in this video. So continue watch this video. Chapter number 4, communication, e-commerce and outsourcing. Students, nowadays business transactions are more. So we have to get some very important things like services to gain upward in our business. Like elements, high quality of goods, low cost from transportation of goods and better services to customers have become important in business. So we have to find in the 21st century e-commerce. Electronic commerce has come into existence for the transaction between units and with the customers. Further outsourcing has also become necessary for smooth operation of internal transactions of business. Now we will move on meaning and definition of communication. Our first topic, we will discuss about the e-commerce communication, right, in this chapter. First, communication is made of two Latin words, communis and communicare. That means to share common. That means we have to share our thoughts to other persons. That is also communication. Meaning of communication has been changed and nowadays its meaning has become wider. The primitive man used to non-verbal communication. देखिए पहले के ज़माने में जो आदि मानव थे वो लोग कम्युनिकेशन नॉन वर्बल, उनके पास शब्द नहीं थे, तो वो सांकेतिक दैट मीन सिम्बॉलिक लैंग्वेज यूज़ करते थे, साइंस यूज़ करते थे और अलग अलग अपने एक्सप्रेशंस, फेस एक्सप्रेशन, हैंड एक्सप्रेशन से वो लोग बातचीत करते थे, तब वर्ड्स नहीं थे. आफ्टर दैट लैंग्वेज इज़ डायरेक्ट यूज इन कम्युनिकेशन. फिर धीरे धीरे लैंग्वेज डेवलप हुई, लोग भाषा सीखते गए और बोलते गए. एज अ रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, with the help of language and science, communication has become faster and easy through various media of communication. 21st सेंचुरी के बाद टेक्नोलॉजी बढ़ गई. टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ हम लोग बहुत सारे जो इक्विपमेंट यूज़ करने लगे, कम्युनिकेटिव टूल्स यूज़ करने लगे, जिससे अलग अलग कम्युनिकेशन हुआ. कम्युनिकेशन इज़ टू वे प्रोसेस, कंपल्सरी टू वे है. मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इट्स अ टू वे प्रोसेस. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ सोर्स टू द टारगेट. यानी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डेट इज़ योर आर माई टारगेट. इन दिस प्रोसेस द सेंडर फर्स्ट कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन इन प्रॉपर फॉर्म एंड देन सेंड इट. ओके, यानी कि जो पहले आपको प्रोसेस सेंड कर रहा है वो पहले से वो इन्फॉर्मेशन ले लेगा, उसके बाद वो आपको सेंड करेगा. उसको चैनल बोलते हैं. इन्फॉर्मेशन, कंसेप्ट, इमोशंस, फीलिंग्स, इंस्ट्रक्शन, ये एक्सचेंज होता है थ्रू कम्युनिकेशन. when message is treated through words like that is language, it is known as a verbal communication. जैसे कभी मैं आपके साथ verbal communication, thus the specified meaning it's constructed from the science. Keep it short and sweet principle should be followed while the creating a message. The message should be short and easy to understand. आपका जो मैसेज संदेश है वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए. The communication process of passing information is attempted without using words. It is known as non-verbal communication. इसको हम non-verbal communication कहते हैं. Like जैसे कि alternative exchange through signals, physical expressions, gestures, pictures, sculptures, okay, facial expressions, eye expressions, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती है. Singing, music, dance, okay, drawing, common salute, कैनन सल्यूट, सायरन, ये सारी चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. इसके अंदर वर्ब नहीं यूज़ होता, वर्ड यूज़ होते नहीं. प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, ओपिनियन एंड इंफॉर्मेशन थ्रू स्पीच, राइटिंग और साइंस. यानी कि हम हमारे पास जो थॉट्स है, विचार है, ओपिनियन है और माहिती यानी कि इंफॉर्मेशन है, वो हम स्पीच यानी कि बोल के, राइटिंग यानी कि लिख के और साइंस यानी कि सिग्नल्स, संकेत, ये दे के हम जो करते हैं, एक्सचेंज करते हैं. दैट मीन्स कम्युनिकेशन. सिंपल डेफिनेशन. Second definition, communication means a process of exchange of information among people regarding knowledge, concept, understanding, emotions, feelings, and opinion. The sender selects the proper medium which affects the receiver, and the result his her behavior is changed, and the relationship with her is established and maintained.
इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस है एक्सचेंज की। किसी के पास नॉलेज, कंसेप्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो अपने जो भी ये इमोशंस हैं, फीलिंग्स है, इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा प्रॉपर मीडियम के साथ। ओके, किसी के बिहेवियर में जो चेंज होगा उसका रिजल्ट यही होगा, और फिर या फिर आंसर भी मिल सकता है। तो इस रिलेशनशिप को हम कहेंगे कम्युनिकेशन जो मेंटेन होती है। कम्युनिकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग आवर थॉट्स इनटू अदर्स माइंड, यानी हमारे विचार को दूसरे के माइंड के अंदर एंटर करना, उसको भी हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन मीन्स द आउटकम रिसीव्ड आफ्टर द प्रोसेसिंग डेटा, यानी कि प्रोसेसिंग डेटा के बाद जो हमें आउटकम रिसीव होता है, आउटकम मिलता है, दैट इज ऑल्सो इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल, इफ वी कलेक्ट प्राइस ऑफ थिंग्स फ्रॉम द 5 डिफरेंट सोर्सेज देन दिस प्राइजेस आर डेटा, उसको हम डेटा कहेंगे। बट द डिटेल्स लाइक मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस, ओके, सबसे ज़्यादा प्राइस किसकी है, सबसे ज़्यादा कम किसकी है, कैसी इंफॉर्मेशन। अब प्रोसेस क्या है? फर्स्ट, क्रिएशन ऑफ मैसेज। यस, आप कभी भी किसी को मैसेज करते हो तो पहले मैसेज क्रिएट करते हो, मैसेज टाइप करते हो, राइट, चाहे वो मोबाइल हो या फिर लेटर पैड हो। मैसेज फॉर्म भी किया जाता है, फॉर्मुलेट इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन। मैसेज में भी ओरल, रिटन, वर्बल और नॉन वर्बल। मैसेज कोई भी हो पहले उसको क्रिएट करना होता है। ट्रैवलिंग फ्रॉम राजकोट टू वडोदरा 8 PM, द स्टेप्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस विल बी एज फॉलो। नीचे एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर एक एग्जाम्पल है कैसे कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरी होती है। स्टडी दिस टेबल केयरफुली। इसके अंदर आपको स्टेप्स दिए हैं, फॉर्मेशन ऑफ मैसेज, सिलेक्शन ऑफ मीडियम टू सेंड मैसेज, टू एक्सेप्ट मैसेज, राइट एंड आंसर, रिप्लाई जिसे बोलते हैं, इंटरेक्शन होगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेप्स, कैसे एक्सप्लेन किया जाता है उस मैसेज को, वर्बल, नॉन वर्बल, ओरल, ओके। अगर मीडियम की बात करें तो किसी भी मीडियम के साथ हम उसको मैसेज को पहुंचा सकते हैं, बहुत सारे मीडियम अवेलेबल है। सेंड मैसेज आपको करना है तो सिलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो एक्सेप्ट द मैसेज, अगर मैसेज एक्सेप्ट करना है, सेंडर सेंड्स द मैसेज एंड वी विल एक्सेप्ट इट। इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज, मैसेज पढ़ के मतलब इंटरप्रिटेशन करेंगे, लैंग्वेज कौन सी है, मैसेज कौन सा है, इन्फॉर्मेशन कौन सी है, उस तरह आप क्वेश्चंस रिलेट करोगे। तो पूरा टेबल आपको अच्छी तरीके से स्टडी करना है। देखो, फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज के अंदर क्या करना है, 8 PM बस फ्रॉम राजकोट वडोदरा विल बी अवेलेबल, क्या अवेलेबल है, टेलीफोन इज़ यूज, यहाँ पर टेलीफोन यूज़ हुआ है। इट इज़ रिक्वायर्ड दैट वॉट दिस आफ्टर, 8 PM के बाद कौन सी बस है जो वडोदरा से राजकोट से वडोदरा आएगी। Using the medium of the telephone, the receiver receives the message that what time after 8 PM a bus from Rajkot to Vadodara. When the sender sends the message that at what time after PM a bus from Rajkot to Vadodara will be available, कौन सी बस अवेलेबल होगी, the receiver understands that is query regarding the bus available for Vadodara after 8 PM. The receiver of the message replies to the query at what time, what 8 PM the bus Rajkot to Vadodara will be available and will supply information accordingly। तो इस तरीके से वो पूरा आपका आंसर देगी, यानी यहाँ पर बस स्टेशन के ऊपर कॉल किया है थ्रू टेलीफोन। स्टडी इट वेल।